গুজরাট এটিএস এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশ লখিমপুরের বাড়ি থেকে একটি আইসিস পতাকা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় জিহাদি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তদন্তকারীরা, যা দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তদন্তকে আরো বিস্তৃত করেছে। সোমবার তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন, লখিমপুরের আইএসআইএস সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী মডিউল মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া সন্ত্রাসী মোহাম্মদ সুহেল খানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এটিএস জানিয়েছে, তল্লাশির সময় সুহেল খানের বাড়ি থেকে একটি আইসিস পতাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তারা আরো নিশ্চিত করেছে যে সুহেল খান এবং সহ অভিযুক্ত আজাদ সুলেমান শেখ অস্ত্র ও রাসায়নিক পরিবহনের সম্ভাব্য পথ পরীক্ষা করার জন্য কাশ্মীরে গিয়েছিল। আজাদ সুলেমান শেখ, মোহাম্মদ সুহেল, মোহাম্মদ সেলিম এবং এমবিবিএস ডাক্তার আহমেদ মহিউদ্দিন সঈদ, এই তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর এই অভিযান চালানো হয়। গুজরাট এটিএস অভিযোগ করেছে যে, বা তারা জানিয়েছে যে, তারা ক্যাস্টর বিনের বজ্র থেকে প্রাপ্ত অত্যন্ত বিষাক্ত কেমিক্যাল রিসিন তৈরির একটি মডিউলের অংশ। কর্মকর্তাদের মতে দলটি এর আগে ডক্টর সঈদের কাছ থেকে সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল, তারপর ক্যাস্টর অয়েল সংগ্রহ করেছিল, যা নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু হয়েছিল। এটিএস আধিকারিকরা জানাচ্ছেন যে, তাদের পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দলটি লখনউয়ে আরএসএস অফিস, দিল্লির আজাদপুর মান্ডি এবং আহমেদাবাদের একাধিক স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে। তারপর কি জানা যাচ্ছে ডক্টর সাইদের কাছে দুটি পিস্তল, 30 রাউন্ড গুলি এবং 4 লিটার ক্যাস্টর অয়েল জব্দ করা হয়েছে বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রিসিন সম্পর্কিত দাবি যাচাই করার জন্য ফরেনসিক পরীক্ষা চলছে। পাশাপাশি ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রভিন্সের সঙ্গে এর যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অংশ হিসেবে গুজরাট এটিএস এর একটি দল মঙ্গলবার রাজেন্দ্রনগর এলাকায় সাইদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখান থেকে রাসায়নিক এবং কিছু কাঁচামাল উদ্ধার হয়েছে, যা সে তার বাড়িতে বিস্ফোরক তৈরির জন্য রেখেছিল বলেই জানিয়েছেন একজন ঊর্ধ্বতন এটিএস অফিসার। তিনি আরো বলেন যে, প্রাথমিক তদন্তে ডক্টর সঈদের হ্যান্ডলার, যে আবু খাদিজা নামে পরিচিত, সে আফগানিস্তানে থাকতে পারে বলে জানা গেছে। ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং পাকিস্তানে থাকা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ আইন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং অস্ত্র আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে একটি আদালত সৈয়দকে 17 নভেম্বর পর্যন্ত এটিএস হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এ বিষয়ে আজ তাকের প্রতিনিধি অপূর্বা জয়চন্দ্রন তার প্রতিবেদনে কি জানাচ্ছেন, শুনুন। आपको भाई को कहाँ से ये मतलब जिनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे और जिनने उनको बोला कि आप ये बैग और ये सामान लेके जाओ? ये मैं भाई के जो बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑनलाइन कॉल आई है गुजरात से, बिजनेस डील करके एक कॉल आई है। उस बिजनेस डील के कॉल पे मैं जो है उनका कॉल एक्सेप्ट करके जब वो डील बताए मुझे, तो मैं उस हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट था वो बनाया। बनाने के बाद जब उनके पास लेके गया तो ये सारा मुझे ट्रैप में फंसा दिया गया, ऐसा बोले वो। और क्या आपके घर को भी गुजरात के एटीएस टीम आई थी? भाई ने क्या कहा कि आपके घर में लैपटॉप लेना है, क्या क्या करना है? भाई संडे के दिन फिर से जो है एटीएस कंट्रोल रूम से कॉल आया। भाई ने कहा कि यहाँ पर आपके घर में उनके कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ मैं इनको बोल दिया हूँ, आप लोग उसको जो है ना एटीएस कंट्रोल टीम जब आएंगी तो उनको दे देना और उन्हें कुछ भी परेशान मत करना, ऐसा कहे थे। फिर एटीएस कंट्रोल टीम ने भी कहा कि हम 2 दिन में आने वाले हैं, आकर आपका जो सामान है वो लेकर के जाएंगे। जब तक किसी को भी जो है अलाउ मत करना उसको उसके पास जाने का, तो हम किसी को भी अलाउ नहीं करें, लॉक डाल के रखें। जब एटीएस कंट्रोल टीम आई थी तो उनको वो हैंड ओवर कर दिए, उसके बाद वो चले गए। ये एटीएस कंट्रोल रूम जब यहाँ पे आई थी, इन लोगों ने क्या क्या जांच करके आप लोगों से बात किया कि क्या क्या उन्होंने लेकर गए थे?
जो आई आकर कॉल किया उन्होंने, कॉल करके मैं नीचे आया, मेरे साथ ऊपर गए। जाने के बाद वो मैं दिखाया तो एक छोटा ड्रम था, उसके अंदर कुछ पल्प, रेजिन का जो पल्प और एसीटोन का जो लिक्विड होता है वो मिलाया हुआ था, वो रखा हुआ था। और एसीटोन का पल्प रखा, रेजिन का पल्प रखा हुआ था, एसीटोन के कुछ बॉटल्स रखे हुए थे और एक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन रखी हुई थी। वो सारा रिकॉर्ड वो लिख कर, रिसाइन लेकर उस पर वो यहाँ से वो सब लेकर के चले गए। क्या आपको पता था कि ये जो एसीटोन का बॉटल्स है, नहीं तो ये रिसिन का जो भी पल्प है, ये सब आपके भाई कहाँ से लेके आए थे या फिर उनको किसी ने दे दिया था ऐसे करके? नहीं, हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर के आए हैं। बस इतना मालूम है कि वो घर में लेकर के आने के बाद मैं भी नहीं था उस वक्त घर में। दूसरे दिन मुझे पता चला कि भाई ऐसा लेकर के आए हैं। तो मैं पूछे नहीं क्या आप लोग? तो बोले कि हाँ पूछे हैं। तो वो बोले कि ये ऑयल का बिजनेस का कुछ ऑफर मिला है, मैं वो करूँगा, करके जब लेके जाके दूंगा तो उसके पेमेंट मिलने वाली है, ऐसा वो घर को सुनाए। आजकल वो जो चल रहा है ना, बातचीत 20 to 25 डेज बिफोर ये ऐसा हुआ है बात। उसके बाद में से फिर डायरेक्ट ये सफ़र के लिए निकले और सैटरडे के दिन कॉल आई उनकी। फिर आपके भाई इसमें जो आप बोल रहे हैं कि ये फंस चुके हैं इस जाल में और कि इनको कोई डिटेल्स भी पता नहीं है, पर इस पे जरूर आपके परिवार में और आपके मोहल्ले में भी ये शक तो हो चुका है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ ऐसा एक स्टैम्प तो लग चुका है। आपको इसमें पब्लिक को क्या? इसीलिए ये तो लगेगा ही। एक मर्तबा जब मीडिया में आ जाएंगे, इस तरीके का आरोप लगेगा तो इस किस्म का तो स्टैम्प टेम्पररी तौर पर लगेगा। उसको जो है ना फाइट करना अब हमारी जिम्मेदारी है और जहाँ तक हो सके इस स्टैम्प को, जो टेम्पररी स्टैम्प लगा है, उसे मिटाने की कोशिश तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारी नज़र में भाई इनोसेंट है और हम कभी भी हमारा इन्वॉल्वमेंट इस किस्म की चीज़ों से नहीं रहा, बल्कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा दूर रहने वालों में से है। लेकिन अब ये जो किस्मत है, किस्मत में इस तरीके का एक टेम्पररी स्टैम्प पड़ना था, वो तो पड़ गया। अब उसको जो है ना मिटाने के लिए मुझे गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन टीम की भी हेल्प की ज़रूरत है। वो न्याय करे और इंसाफ करें और इंसाफ के साथ इन्वेस्टिगेट करके जो उन्होंने कहा है, हो सकता है वो उन्होंने वक्ती तौर पे कहा है प्रेस में आकर के, जितना उनको मालूम था उस वक्त में, जो इतना उनको मालूम था उन्होंने कहा। लेकिन एक्चुअल जो न्यूज़ जब आएगी तब वो एक्चुअल न्यूज़ को रखे सामने, अपना पास्ट जो कहा है उस पर स्टैंड ना रखते हुए जो असल जो न्यूज़ है उसको जो है अपना स्टैंड बनाए और सारा पूरा पीछे का मेट दे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो। ऐसे तो टेररिस्ट जैसा, टेररिज्म का मतलब टॉक्स या ऐसे कुछ किसी लोग को नुकसान पहुंचाना वाला ऐसे तो व्यवहार नहीं था आपका? हरगिज नहीं था, कभी नहीं था, बल्कि वो तो एक दूसरे को मदद करने वाला उनका व्यवहार था और बहुत फ्रेंडली नेचर, बच्चों के साथ खेलना, हमारे साथ हमारी जो है ना वो नीड्स का ख्याल रखना और रिश्तेदारों के साथ उनका ख्याल रखना, ऐसा वाला उनका व्यवहार था। ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल इनोसेंट है हमारी नज़र में और हम गवर्नमेंट से इसीलिए तो मुतालबा कर रहे हैं। अगर हमें शक होता तो हम पहले ही कह देते थे कि हाँ इनके अंदर हमें लग रहा है, आप इन पे कड़ी से कड़ी जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करें, पहले से कहते थे। लेकिन हमें ऐसा कुछ लगा नहीं, इसलिए हम ये भाई के लिए स्टैंड ले पा। আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন।